Okay, so I'm gonna share the presentation with you people right away. Let me share the desktop. This is the presentation for today. And okay, so today we are going to discuss the importance of different houses that you have. Okay, so the most important thing is to understand that we have a few houses that are very important, right? And how these houses react. Okay, so there are 12 houses in a kundli, in a birth chart that you see. Every house belong to some category, very important categories, right? And based on the properties of the houses, you can actually interpret the results of a chart. Okay, so as you know, the most important houses are the Kendra houses and the Trikona houses. Okay, so I'm going to show you, these are called the Kendra houses, the internal quadrant. The four houses that you see green in color, they are called the Kendra houses. They are very powerful houses, let me tell you this. 1, 4, 7, and 10. These are the houses where if you find a planet, the planet will feel very powerful. Okay, it's a very powerful house. 1, 4, 7, 10 houses, in fact, right? If you have a bad planet sitting here, that planet will feel powerful in the bad way. If you have a good planet sitting here, the planet will feel good in a good way. So these are powerful houses, right? And but you know what? You must have heard that there are malefic house planets like Saturn and Rahu and Ketu. You know, they don't do very well in Kendra and Trikonas, which is right, which is not wrong. If you find malefic planets like Rahu, Ketu, Saturn, all these planets, right, in these houses, they may not perform very well. They may not be very happy because these are the houses of spirituality. These are the houses which were formed first when you were born. Let me explain you these things on the whiteboard. How? Okay. Now, you know what, ladies and gentlemen, when Muni Parashara was making the horoscope, the first horoscope ever, he wanted to understand that out of the Trinity, you understand what is the Trinity? Okay, Trinity is Brahma, Vishnu, Mahesh. Okay, the Three Shakti. Okay, how Brahma, Vishnu, Mahesh will affect a chart. Okay, that's what I'm going to explain you today. Now, let me introduce you Brahma, Vishnu, and Mahesh here. Okay, now this is the first house. You know that? Yes, Or sir. everyone? Very Yes. easy. First house, right? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, this is the Guruji. beginning of something. Okay, when you have beginning of something, the beginning is always given to Brahma. So I'm gonna write B here. Okay, now you got your beginning from the first house. The second house is your family, your wealth, which I've already explained you in the previous lectures, right? The fixed assets that you have, right? So all the fixed assets and your wealth and your parivar, your good food that you eat, your kutumb, your vani, everything is operated by Vishnu. Okay, second house. That is why the second house is also considered as a Lakshmi Sthana, right? One of the wealth houses, one of the wealth giving houses is the second house, right? Now, from here, the struggle starts, the third house, right? Third house is where the things get destroyed. Okay. Third house is a house which is beginning of calm, calm trikona.
Kam is the sexual activity. 3, 7, 11. Right? Now, the third house is a house which belongs to Shiva. Because whenever something is going to be destroyed, it is going to come under Shiva. Right? Your ego is destroyed in the third house. Okay? Your physicality is destroyed. The sperm that you hold with you is destroyed. Right? So these things, anything which you lose is the third house, and that losing things belongs to Shiva. If you don't want to lose things in your life, whatever you have, you need to become Shiva devotee. Simple as that. Right? So the third house belongs to Shiva. Now you have to just follow this procedure. Again, Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma, Vishnu, Shiva. Like, now fourth house is beginning of your home, right? Fourth house is your home. You know that fourth house is home. So कभी ना किसी ने तो पहली बार जिंदगी में घर बनाया होगा ना. First time in life you made your own home. Who did that for you? Brahma. You are born here. Now you made your home. Brahma. Okay? He will give you the beginning. Now you will have children. So children will only happen with the help of Vishnu ji. Vishnu ji will give you children. Fifth house. And now you have debts, rog, shok, karja, rin, bimari, shatru, litigation, problems. Everything is coming in the sixth house. Okay? Which is again Shiva. Shiva is going to take care. Now everyone will get married at least once. Seventh house. Brahma again. The beginning of your new life. This is beginning of you. This is beginning of your home. Now this is beginning of your marriage. Right? Now after the marriage is done, this is the life after marriage. Okay? This is something also called the death house, because eventually you die. You know, आप कोहलू का बैल बन के अपने परिवार का करते 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 करते, राइट, आप जो है आपकी 8th हाउस में डेथ हो जाती. लेकिन डेथ को कौन डिस्ट्रक्ट करके बचाता है, कौन रोकता है डेथ को? हु कैन स्टॉप द डेथ? इट्स द शिवा in the 9th house. Shiva is the one who can actually destroy your 8th house, and it is good if he destroys your 8th house, right? इसीलिए आपकी लॉन्जिविटी को बढ़ाने के लिए कौन सा मंत्र कहा जाता है? महामृत्युंजय मंत्र. राइट? शिवा आपकी मृत्यु को खत्म कर सकते हैं, मृत्यु को मार सकते हैं, आपको लॉन्जिविटी दे सकते हैं. इसीलिए भाग्य का सारा जो दारोमदार है, भाग्य का सारा जो वेट है, वो शिवा के पास है. शिवा इज द वन. विष्णु जी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट योर भाग्य, यू नो दैट. विष्णु जी से आपने जो कर्म किया है, मैं आपको उसका फल दे दूंगा. लेकिन शिवा इज अ सेंटिमेंटल एनर्जी. is very sentimental. You go, you start crying in front of Shiva. Shiva will forget what you've done in the past. He said no problem, मैं फिर दे देता हूँ आपको. और फिर सारे देवताओं को प्रॉब्लम आ जाती है. भोलेनाथ आप क्या करते हो? आपको थोड़ा सा कोई मनाने आता है, आप बह जाते हो, उसको तथास्तु बोल देते हो. राइट? सो जो भाग्य होता है वो भोलेनाथ के हाथ में होता है. एंड देन द 10th हाउस इज बिगिनिंग ऑफ योर प्रोफेशन. ओके, अगेन. सो इंटरनल क्वाड्रेंट, you know, your comfort, your marriage and your work. So ये वाला जो internal quadrant है, इसको हम बोलते हैं केंद्र. 1 2 3. ये ब्रह्मा जी को बिलोंग करता है. इसको हम बोलते हैं गुड बिगिनिंग्स, गुड हाउसेस. because these houses have capability of giving you good beginnings. Okay? And then there is something called trikona, the triangle. Okay, this triangle. Okay, this triangle. These are called trines. So अगर मैं हाउसेस की बात करूं, तो केंद्र हाउसेस कौन कौन से हैं? जो बिल्कुल सेंटर में है और पावरफुल हाउसेस हैं, जो जिंदगी को शुरुआत देते हैं, which is first house, 4th house, 7th house and 10th house. Okay,
Or then there are called trikonas. You will hear this term a lot. Kendra Trikona, which is first house again, fifth house, and the ninth house. These houses, these 6 houses are very, very, very important. The first house is common in Kendra and Trikona. This common house is called Lagna. The first house. You know what? एक इंसान की क्रिएशन कैसे होती है, क्रिएटिविटी कैसे होती, कैसे भगवान एक इंसान को जन्म देते हैं। वो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि इंसान का प्रारब्ध क्या है, पास्ट लाइफ कर्म क्या है। उसने 10 लोगों के साथ चीटिंग की, 15 लोगों के साथ उसने कहीं ना कहीं पर अच्छा जीवन निभाया। अब इन 10 लोगों को और इन 15 लोगों को एक जीवन में तो सेटल नहीं किया जा सकता, इसीलिए मल्टीपल जन्म लग जाते हैं अपने कर्म ठीक करते 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 करते। सबसे पहले इंसान के जन्म से पहले उसका भाग्य लिखा जाता है कि आपका भाग मतलब भाग्य मतलब आपका हिस्सा, पार्ट। भाग मतलब पार्ट होता है ना, डिवाइड, इक्वल, मतलब इसमें से पार्ट उठाओ। पिक अप सम पार्ट फ्रॉम योर टोटल कर्मा, good and bad, and that part becomes your bhag, which is called bhagya. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले पूरी कुंडली में जो सबसे पहले द फर्स्ट हाउस जो डिसाइड किया जाता है वो कौन सा होता है? Which one? Which one? So ninth house. नाइन्थ हाउस। सबसे पहले जो डिजाइन किया जाता है आपके लिए, वो आपके लिए नाइन्थ हाउस डिजाइन किया जाता है सबसे पहले, द फर्स्ट हाउस। और नाइन्थ हाउस में जब भाग्य डिसाइड किया जाता है तो भाग्य में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या डिसाइड की जाती है सबसे पहले? एनी गेसेस? पहले के कर्म। नहीं, वहां से तो मेघना हमने उठाया ना, डेटा उठाया। कर्म तो आपने किए हुए हैं, उसने वो हमने क्या डिसाइड करना, भगवान जी ने। वो तो आपके कर्म ऑलरेडी डिसाइडेड है, उठा लिए, चलो ये वाले फिक्स करते हैं। नाइन्थ हाउस बनाना शुरू करना है, ये वाला नाइन्थ हाउस। तो इसमें सबसे पहले क्या डिसाइड करोगे? सर उनको गुरु कैसे मिलेंगे? और और ये Sorry? जन्म में क्या उनको कौन कहाँ पे होंगे, किस घर में होंगे? सर करेक्ट। स्पिरिचुअलिटी मतलब मेन देखेंगे इससे। अच्छा चलो ऐसा सोचो, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए ये सोचो कि आप यमराज हो और मैं आपका असिस्टेंट हूँ चित्रगुप्त, और हमने किसी थर्ड पर्सन को जमीन पे भेजना है। उसका पूरा का पूरा डेटा हमारे पास आ गया। तो पहले मैं और आप उसका क्या डिसाइड करेंगे? सबसे So पहले Lagna. देखिए, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे उसकी लॉन्जिविटी। सबसे पहले कि हमने उसको कितनी देर के लिए भेजना है, 50 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल। और जब वो वापस आएगा कैसे आएगा? एक्सीडेंट से वापस आएगा या वो नेचुरल डेथ से वापस आएगा, बीमार होके वापस आएगा? वो कर्म डिसाइड करेंगे उसके। नाइन्थ हाउस। इसलिए अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में जानना है, अपने पास्ट लाइफ के बारे में, तो सबसे पहले आपकी नजर नाइन्थ हाउस पे जानी चाहिए। आपका नाइन्थ हाउस बताएगा आपका पास्ट लाइफ कर्म क्या है, किस वजह से आपने जन्म लिया है। और नाइन्थ हाउस से आगे नाइन्थ हाउस गिनोगे, नाइन्थ फ्रॉम नाइन्थ, तो आपका अगला हाउस जो आएगा वो कौन सा आएगा? फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस। ये आपका फ्यूचर है, ध्यान से सुनना। फिफ्थ हाउस इज फ्यूचर। आप 9 से 9 प्लेसेस गिनो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 प्लेसेस आगे चलो,
किसी भी घर से 9 प्लेसेस आगे उस घर का फ्यूचर होता है। याद रखना, याद रखना हमेशा। सेकंड हाउस का फ्यूचर कहाँ होगा? 10th हाउस में। थर्ड हाउस का फ्यूचर कहाँ होगा? 11th हाउस में। फोर्थ हाउस का फ्यूचर कहाँ है? 12th हाउस में। याद रखना, ठीक है। ये पास्ट है आपका, ये आपका फ्यूचर है। ये दो घर सबसे पहले निकाले जाते हैं। मैंने अभी आपको बोला किसी भी घर से 9 प्लेसेस गिनोगे तो उसका फ्यूचर होगा। पांचवें घर से 9 प्लेसेस आगे गिनो, कौन सा घर आया? फर्स्ट हाउस। यू, यू विच इज फर्स्ट हाउस, दिस इज लग्न। सिंपल। आपके फ्यूचर का भाग्य आप है। लोग पूछते हैं ना कि सारा कुछ स्क्रिप्टेड है। हाँ बिल्कुल स्क्रिप्टेड है। क्यों स्क्रिप्टेड है? क्योंकि आपका भाग्य, आपने जो पास्ट में किया, उसके आगे 5 घर, पांचवा घर क्या होता है? कहीं से भी 5th हाउस आप गिनोगे तो वो चिल्ड्रन है ना, चाइल्ड। पांचवा घर चाइल्ड का है। आपके कर्मों की वजह से जो बच्चा पैदा होता है वो यहाँ से 5 घर आगे पैदा होगा, जो आप है, यू। 9th हाउस से 5 प्लेसेस गिनो आगे, 1 2 3 4 एंड 5। कहाँ पे पहुंचे हम? फर्स्ट हाउस में। ये आपका लगन है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है। आप कौन हो, क्या लेकर आ रहे हो। और आपका फ्यूचर 5 घर और आगे कैसे? आपके बच्चे ही आपका फ्यूचर होते हैं। आपका बुढ़ापा डिपेंड करता है आपके बच्चों पे, आपके संतान पे, आपके कुल पे। तो सबसे पहले कुंडली का 159 डिजाइन किया जाता है। विष्णु जी सबसे पहले 9th हाउस को डिजाइन करते हैं, आपके भाग्य को। और आपने बात की ना गुरु डिसाइड किए जाते हैं। आपके सबसे पहले गुरु कौन है? सबसे माँ। पहले मामा। पेरेंट्स। फादर। मम्मा पापा, माता पिता। हाँ यस, जी। हाँ। तो 9th हाउस में जो गुरु डिसाइड किए जाते हैं, सबसे पहले वो माँ बाप डिसाइड किए जाते हैं कि इस घर में जन्म लोगे आप। आपके फर्स्ट गुरु आपके पेरेंट्स हैं। उसके बाद आपको एक लगन दिया जाता है। फिर आपके बच्चे डिसाइड किए जाते हैं 5th हाउस से कि आपका कुल आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। उसके बाद आपका चतुर्थ भाव बनाया जाता है, कंफर्ट। फिर आपका लाइफ पार्टनर बनाया जाता है। फिर आपका प्रोफेशन बताया जाता है। तो ये केंद्र और त्रिकोण जो है ये भर जाते हैं। कौन सी राशि आएगी इनमें, कौन से ग्रह आएंगे इनमें। इसीलिए सभी घरों में से केंद्र और त्रिकोण को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। केंद्र ये वाला इंटरनल क्वाड्रेंट, ये वाले 4 घर जो इंटरनल, और त्रिकोण ये फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस। इसकी वजह से आपकी क्रिएशन हुई है। ये बताते हैं कि आपको कितना सुख मिलेगा, ये बताते हैं कि शादी होगी कि नहीं होगी, ये बताते हैं कि प्रोफेशन अच्छा होगा कि नहीं होगा। और जब आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको केवल इन्हीं घरों के सवाल खा जाएंगे। किसी भी क्लाइंट के पास इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। मेरा घर कब बनेगा, मेरी गाड़ी कब आएगी, मेरी शादी कब होगी, हमारे बच्चे कब होंगे, और मेरे प्रोफेशन में क्या होगा। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन होगा ही नहीं उसके पास। बताओ, आप सबने भी तो मेरे से कंसल्टेशन ली है, आपने भी तो यही पूछा मेरे से। आप भाग रहे थे केंद्र और त्रिकोण की तरफ। फिर कुछ लोग जो ज्यादा सेंटिमेंटल ने पूछा, गुरुजी मैंने पास्ट लाइफ में हमने क्या ऐसा किया था जिसकी वजह से हमें ये मिला। हाँ, फिर पूछते हैं हमारे 2 लड़कियां ही हैं, लड़का होगा 5th हाउस। हमारे पास गाड़ी है, अगले साल गाड़ी ले लें, 4th हाउस। घर कब बनेगा, 4th हाउस। शादी कब होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 7th हाउस।
इंडिया में काम करेंगे, बाहर काम करेंगे, घर के पास करेंगे, घर से दूर करेंगे, 10th हाउस, सारी जिंदगी निकल जाती है केंद्र और त्रिकोण के जवाब देते देते, होल लाइफ। लेकिन कोई मेरे से पूछता ही नहीं कि मेरे लाइफ में स्ट्रगल कितनी है जिससे मैं कुछ सीख सकूं। कोई नहीं पूछेगा आपसे। कोई ऐसा इंसिडेंट होगा मेरी लाइफ में जो मुझे इतनी जोर से चांटा मार के जाए और उसके बाद मुझे अकल आ जाए? वो बोले ऐसा इंसिडेंट ना ही हो। ठीक है ना? वाई? वो वाले कौन से हाउसेस हैं? वो खराब वाले हाउसेस हैं जो बेचारे शिव जी को दिए हुए हैं हमने। 3rd हाउस है ना, 6th हाउस, अब ये विष्णु जी को दिया हुआ है एक, और ये 12th हाउस फिर से शिव जी को दिया हुआ है। आपको पता है शिव जी भोलेनाथ को 3rd हाउस कौन कौन से हाउस दिए हुए हैं? 3, 6, 9 and 12. 12। इनको ड्यूल हाउसेस भी बोलते हैं। पता है आपको? ड्यूल राशिज है ना, ये ड्यूल साइंस। साइंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, Fixed. जो 1, 4, 7, 10, ये जो राशियां हैं इनको क्या बोलते हैं? मूवेबल। याद रखना। जो 2, 5, 8, 11 है, ये Fixed. सारी राशियां फिक्स्ड हैं। Yes. अच्छा, फिक्स्ड क्यों है? फिक्स्ड क्यों है ये? तो क्योंकि वो बहुत प्रोमिनेंट है। नहीं यार, प्रोमिनेंट तो सारी हैं। फिक्स्ड क्यों है? और ये ड्यूल है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे एक चीज रिमूव करता हूँ और आपको आज इसका आंसर पता लगेगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिक्स्ड, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ मूवेबल, और मैं यहाँ लिखता हूँ ड्यूल। मैंने बोला जो 1 नंबर, नहीं, 2, 5, 8 और 11 है, ये फिक्स साइन है। और जो मूवेबल है वो है 1, 4, 7 और 10। और जो ड्यूल है वो है 3, 6, 9 और 12। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? शिव जी। विष्णु जी। विष्णु जी। डिसाइड कर लो पहले, टॉस कर लो। मेरे लिए शिव जी। विष्णु जी। शिव, मेरे लिए भी शिव। अच्छा जरा, अब आपके लिए शिव है तो इसका मतलब सबके लिए शिव थोड़ा ना है। नहीं सर, हमारे लिए तो वही है। नहीं नहीं, आपके लिए, मेरे लिए भी हैं, लेकिन अगर पावरफुल की बात करें जी। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? विष्णु जी की नाभि विष्णु जी से। के नेवल से। विष्णु जी के नाभि से। और शिव जी की उत्पत्ति? सर वो तो बॉर्न हुए ही नहीं, ही इज इटर्नल, उनका तो कुछ मैंने है ही। उनको जन्म तो कहा ही नहीं, मेरा वर्ड यूज कर रहा हूँ उत्पत्ति। सर विष्णु जी की वो फोरहेड की सेंटर आई। एग्जैक्टली, हु इज दिस? किसने बोला ये? सर अंशुला मी। अंशुला। अंशुला इज एब्सोल्युटली राइट, क्लैप फॉर अंशुला। शिव जी की उत्पत्ति जो हुई है वो विष्णु जी के मस्तक से हुई है। शिव जी एक ऐसी एनर्जी है जो विष्णु जी के मस्तक से जो है उत्पन्न हुए हैं। उनका जन्म नहीं हुआ है, उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए जो सबसे पावरफुल चीज है वो कौन है? विष्णु जी। विष्णु जी। क्योंकि विष्णु जी, राजा राम विष्णु जी का रूप है, इनकारनेशन ऑफ विष्णु। कृष्णा इज इनकारनेशन ऑफ विष्णु, राइट? सो द मोस्ट पावरफुल थिंग इज विष्णु, ओके, एंड देन Mahesha, and then it is Brahma. So hierarchy is like this: 1, 2 and 3. मतलब top highest level विष्णु जी, शिवा and ब्रह्मा, right? कभी कभी
जो आपके अंदर से निकली हुई चीज है वो आपसे ज्यादा पावरफुल हो जाती है, इसलिए आपको शिवा ज्यादा पावरफुल लगते हैं। कभी कभी जो आपके स्टूडेंट हैं या आपके जो बच्चे हैं वो आपसे तेज नहीं निकलते हैं। आपका मोबाइल खराब हो जाए, आप कहते हो बेटा मेरा मोबाइल ठीक करना जरा, वो है तो आपका बच्चा आपके अंदर से निकला हुआ और आप उससे चीजें ठीक करा रहे हो। ठीक है, तो शिवा इज वेरी पावरफुल। इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी भोलेनाथ के पास ज्यादा पावर है, लेकिन विष्णु जी इज ऑन द टॉप, ही इज एट द हाईएस्ट लेवल। अब मैं एक चीज करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ फिक्स्ड के सामने लिखने वाला हूँ विष्णु जी, मूवेबल के सामने लिखने वाला हूँ ब्रह्मा, और ड्यूल के सामने लिखने वाला हूँ शिवा। चार्ट बनाएं, आप देखना ये सारे साइंस उसके अकॉर्डिंगली ही आएंगे। 1 4 7 10 ब्रह्मा जी को बिलोंग करेंगे, 3 6 9 12 शिवा को, और ये बहुत जबरदस्त लॉजिक्स है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब देखो ब्रह्मा जी के पास कौन कौन से घर हैं? 1 4 7 10, हाँ, Yes. Yes, और sir. विष्णु जी के पास 2 5 8 11, Yes, sir. और शिव जी के पास 3 6 9 12। Yes, sir. महेश, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश इज शिवा। Yes. अब ये फिक्स साइन क्यों है? इन साइंस के अंदर आपका कोई भी ग्रह आ गया, वो डायरेक्टली जो श्राप है आपके जीवन में या आपके जीवन में जो ब्लेसिंग है, इट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम विष्णु जी. विष्णु जी। अगर मूवेबल साइन में कोई श्राप या ब्लेसिंग आ गई, इट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम, ब्रह्मा जी. एंड अगर कोई 3 6 9 12 में ग्रह आ गया, इट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम शिव जी. शिवा। अब आप ये देखो कि आपकी कुंडली में कहाँ पे श्राप है, कौन से साइन में, घर में नहीं, साइन की बात हो रही है। ये सारी राशियां हैं, these are signs. These are signs. Okay, these are not houses. These are signs. So that means इसका मतलब ये है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर फर्स्ट हाउस में फर्स्ट ही लिखा हो। मान लो ये कुंडली है, और ये जो कुंडली है ये जेमिनाई राइजिंग है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। अब मैंने आपको बोला फर्स्ट हाउस ब्रह्मा का होता है, ठीक है। आपको पता है इस कुंडली में ब्रह्मा कौन है? सर जेमिनी. जेमिनी कौन है? मर्क्यूरी. मर्करी कौन है? बुध. मेरी बात ध्यान से समझो प्लीज। अब मैं आपको 2 मिनट रुक जाओ, अपने दिमाग को बिल्कुल क्लियर करो। आपका जन्म की क्रिएशन करने के पीछे शिवा है। जी बिल्कुल सर. मेरी बात समझो, आपका लगन बताता है कि आपकी क्रिएशन किसने की, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, के शिवा ने। आप समझ रहे हो मेरी बात? Yes. यस सर. आपका भाग्य किसके पास है? यहाँ पर विष्णु।
आपकी मैरिज किसके पास है, किसके हाथ में है? शिवा। आपके बच्चे किसके हाथ में है? ब्रह्मा। और ब्रह्मा की तो पूजा ही नहीं होती। अब ये नया पंगा डाल दिया। तो ब्रह्मा की जगह किसकी पूजा होती है? बोलो बोलो। बृहस्पति देव। नहीं। मम्मी पेरेंट्स हाँ जी, ब्रह्मा को श्राप था ना, यस ब्रह्मा और विष्णु जी में हो गया कि जीतेगा कौन, और एक शक्ति छोड़ दी भोलेनाथ ने, एक लाइट, एक पोल ऑफ लाइट। वो बोलो जिस पोल के एंड पे जो पहले जाएगा वो जीत गया, वो पावरफुल है। दोनों ही नहीं पहुंच पाए। विष्णु जी ने हार मान ली। ब्रह्मा जी कहते मैं तो पहुंच के टच करके आ गया। शिवा को गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला आज के बाद तेरा कभी भी तेरी पूजा नहीं होगी धरती पे, तूने झूठ बोला है। ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है सिवाय राजस्थान में एक मंदिर है ब्रह्मा जी का, बस पुष्कर। पुष्कर में। पुष्कर अदरवाइज ब्रह्मा जी की पूजा ही नहीं होती है। तो ब्रह्मा जी की जगह किसकी पूजा करोगे? शक्ति हैं? दुर्गा जी। मुझे लगा कह रहे मेरी। मुझे लगा कोई कह रहा सर आपकी। गुड, वेरी गुड। शिव जी अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपके आसपास क्रिएशन किसने की है? आपकी जो क्रिएशन हुई है, पेरेंट्स हमारे Parents. पेरेंट्स की। नहीं एक मिनट, आपकी जो क्रिएशन है वो पंचभूतों से हुई है, राइट 5 एलिमेंट्स। तो ब्रह्मा की रिप्रेजेंटेशन देती है धरती माँ, माँ जो मदर अर्थ है। और मदर अर्थ का बेटा कौन है? मंगल मंगल, भूमि पुत्र। मंगल ठीक है, भूमि पुत्र बोलते हैं मंगल को। यस अब मंगल किस देवता के अंदर है? शिव भगवान। गणेश हनुमान जी हाँ जी। हनुमान जी। तो ब्रह्मा की जगह हमेशा हनुमान जी की आराधना की जाती है। ओके, सो याद रखिएगा कि अगर आपको, और अगर हनुमान जी के भी बॉस पे पहुंचना है तो फिर श्री राम राम जी राम आप- जी। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है ये। और आपको पता है हनुमान जी को वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में किससे रिप्लेस किया जाता है? गणपति जी से। ओके गणपति जी से। आपको पता है ये जो पूरी फैमिली है ना, इन्होंने ना पूरे भारत और पूरे इंडिया पे पूरा का पूरा क्या किया हुआ है? क्या किया हुआ है? कंट्रोल। कंट्रोल किया हुआ है। बोलो कैसे? ये देखो, आपको ये भी बता देते हैं। ये पूरी फैमिली का पूरा कंट्रोल है यार। आई मीन यू कांट इमेजिन कि हमारा भारत किस तरह से कंट्रोल में है। कैसे? ये देखो, अब मेरे को ना, अब मेरी ड्राइंग पे हंसना मत प्लीज एवरीवन, ठीक है? अब मेरी कोई ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है और ना मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो भारत का नक्शा बना रहा हूँ। ठीक है, चलेगा? लगता है दौड़ेगा ठीक है, दौड़ेगा ना? अच्छा, नॉर्थ में कौन है? कैलाश। हिमालय जी। शिव जी है शिव जी। और इधर विष्णु जी ओए ब्रह्मा जी। ओए तेरी, ऐਵੇਂ ही बोलते रहते हैं। नहीं सर, राजस्थान ब्रह्मा जी। अच्छा, मुंबई कहाँ आता है? वेस्ट में आता है। हाँ गणेश जी गणपति बप्पा अभी तो फेस्टिवल चल रहा है, अभी भी नहीं बोल रहे। हे भगवान, हाँ सर उन ये कब गणेश। बोलेंगे? सबसे ज्यादा गणपति बप्पा की प्रार्थना कहाँ होती है? वेस्ट में, महाराष्ट्र महाराष्ट्र में। यस अच्छा, इधर इधर क्या है? इधर वेस्ट बंगाल, माँ दुर्गा दुर्गा जी माँ दुर्गा दुर्गा इज ऑल्सो, काली। शिवा यू नो।
ललिता विच इज ऑल्सो माँ पार्वती। अच्छा, साउथ में किसकी पूजा होती है? कार्तिकेय मुरुगन कार्तिकेय। कार्तिकेय कार्तिकेय की बहुत पूजा करते हैं। यस अब आप देख लो शिव परिवार की पूजा करने से क्या क्या होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस सर। आपको कहीं भी तीर्थ स्थल जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, और लॉजिक बताऊं, बड़ा डीप लॉजिक, बहुत डीप, बहुत ज्यादा डीप। यहाँ पर मौसम कैसा है? ठंडा। कोल्ड, कोल्ड, यहाँ पर हॉट। ह्यूमिड, ह्यूमिड, मॉडरेट ह्यूमिड। यहाँ पर हॉट, और यहाँ पर रेनफॉल्स, आई मीन रेन्स, यू नो, सारा रेनी, सारा जो है रेनफॉल बहुत ज्यादा है इधर, यस है ना? जी, अच्छा, ये देख रहे हो 3, 6, 9, 12? हाँ? यस सर। यस यस सर। एक बड़ी डीप बात बताने जा रहा हूँ। शायद आपने पूरे YouTube की हिस्ट्री में, अपनी किताबों में ये सुनी नहीं होगी, एक्सक्लूसिव आप लोगों के लिए। हमारे पास कितनी ऋतुआं होती हैं? कितने कितने मौसम होते हैं? 4। चार, यस कौन कौन से? समर, समर, विंटर, Spring. ऑटम, स्प्रिंग, समर, स्प्रिंग, एग्जैक्टली, समर, विंटर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। ऑटमन एंड स्प्रिंग। SPG लिख देता हूँ, ठीक है, चलेगा? जी, अच्छा, समर कब शुरू होते हैं? अप्रैल, डेट मार्च मार्च, अप्रैल, टू मई, मार्च से। अप्रैल, नहीं यार, 3 समझ, months, यार गर्मी बताओ, पूरी गर्मी कब होती है? सर मई, मई, जून, मई मई अप्रैल में अप्रैल, मई एंड जून। सर मई 31st तक, 30th तक सर हो जाती है अभी। जी, मतलब हाईएस्ट पीक जून में होती है, जी, यस, ठीक है। विंटर? सर दिसंबर, दिसंबर, ऑटमन? अक्टूबर, नवंबर, ऑटमन सितंबर, यस सर। और स्प्रिंग? फेब, मार्च, 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 थर्ड मंथ, 9th month, 12th month, and 6th month. this is brilliant. Okay, 3, 6, 9 and 12. 12, और ये वो महीने होते हैं जब सीजन बदलता है और आप ड्यूअलिटी फेस करते हो, ड्यूअलिटी। oh And why Shiva is controlling all 4 seasons? Because he is dual. He is Ardhanareshwar, half male, half female. Ardhanareshwar concept comes from Shiva. और जब भी संक्रांति होगी जून के महीने की, संक्रांति होगी दिसंबर के महीने की, संक्रांति होगी सितंबर के महीने की, संक्रांति होगी मार्च के महीने की, मौसम बदल जाएगा। Whenever Surya Devata will enter June, it will be summer. Whenever Surya Devata will enter December, it will be winter, highest levels, snowfall शुरू इंडिया में। Whenever Surya Devata will enter the Sankranti of the September month, dual signs वाले में, तो आपका क्या शुरू हो जाएगा? ऑटमन। और जब सूर्य देवता मार्च वाली संक्रांति में आएंगे तो स्प्रिंग शुरू हो जाएगा, पत्ते निकल आएंगे। इसलिए आपके जो मौसम है वो भी कौन डिसाइड करता है? शिवा, शिवा, ड्यूअलिटी, सूर्य देवता। इसीलिए 3, 6, 9 और 12
में हर चीज ड्यूल होती है। कैसे? बताओ बताओ बताओ। 3, 6, 9, 11 हाउसेस ड्यूल कैसे कैसे है? अब हम इसको रब करते हैं और एक बड़ा सा चार्ट बनाते हैं। देखो, ज्योतिष को दिल से सीखोगे ना, एक एक चीज आपके आसपास आपको अपने जैसी लगेगी। हर चीज में भोले बाबा नजर आएंगे, हर चीज में विष्णु जी नजर आएंगे, हर चीज में आपको राजा राम नजर आएंगे। इसी बात पे 5 बार बोलो राम 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 राम। राम 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 राम। राम राम। ओके, टॉकिंग अबाउट 3, 6, 9, 12। अभी तो बड़े हाउसेस की बात करनी है। बहुत ज्यादा आपको जीवन में सुखी बनाएंगे, इजी करेंगे आपके लिए ज्योतिष। पागल नहीं बनाना किसी को। डोंट मेक फूल। ओके, 3, 6, 9 एंड 12th हाउस। तीसरा भाव आपके सिबलिंग्स का। अगर आपका कोई सिबलिंग पैदा होता है तो आप और आपके सिबलिंग कितने लोग बने? ड्यूल, 2 से ज्यादा। जी ये आपके पिता और गुरु हैं। आपके एक से ज्यादा गुरु होते हैं, जैसे माता पिता, स्कूल टीचर, ज्योतिष टीचर। तो ये भी ड्यूल हो गए ना, एक से ज्यादा। जी हाँ, जी ये 12वां भाव है। 12वां भाग 2 चीजों का है, एक आपकी स्लीप का और एक आपके मोक्ष और मेडिटेशन का। आपको पता है ये जो स्लीप है ये भी 2 तरह की होती है, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। जो टेम्परेरी स्लीप है 7-8 घंटे की, वो जीवन है, और जो परमानेंट स्लीप है वो मृत्यु है। मैंने कहा ना कि अगर प्रथम भाव से 5 घर आगे जाओगे तो क्या है? आपके बच्चे, 5th हाउस इज चिल्ड्रन, आपका फ्यूचर, है ना? जी ये 8th हाउस है। 8th हाउस डेथ है। डेथ से आगे 5 घर गिनो जरा। 1, 2, 3, 4, 5। क्या है यहाँ पे? 12th house। मोक्ष। हम्म, डेथ का फ्यूचर मोक्ष है। अगर मोक्ष नहीं मिला तो क्या होगा? सेकंड हाउस, यहाँ से सेकंड हाउस विच इज जन्म, लग्न। समझ रहे हो आप मेरी बात? हम्म, है ना? जी और ये क्या है? 6th हाउस क्या है? एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स, रोग भी, Enemy। शोक भी, रोग ऋण शत्रु। शत्रु, रोग, कर्जा, बीमारी एक साथ हाँ। घेरा पड़ता है जीवन में। जब भी पड़ता है प्रॉब्लम, कभी अकेली नहीं आती, याद रखना। हम्म, अगर पैसे की कमी आएगी तो हेल्थ भी जाएगी, हेल्थ जाएगी तो दुश्मन भी बनेंगे, दुश्मन बनेंगे तो हाइपरटेंशन भी होगी, बीवी, बच्चे, समाज सब अगेंस्ट हो जाएंगे आपके। आपको लगेगा मेरा ये जीवन है क्या? ये मैंने किया क्या है? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? तो क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं था। तो फटाफट से आपको आइडेंटिफाई करना है कि छठे भाव के मालिक कौन है। विष्णु जी हैं। अगर विष्णु जी हैं फिर तो पंगा पड़ गया। क्यों पंगा पड़ गया? बताओ 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 That बताओ। is because he is fixed, sir. ही इज फिक्स्ड यार। वो Fixed वो है। हटने वाले नहीं है। हम्म। वो उनकी जो पनिशमेंट है ना, वो मतलब मना लोगे आप उन्हें, लेकिन उपाय करने पड़ेंगे 8 से 10 साल। जैसे कहते हैं शादी के 10 साल बाद बेबी हुआ, 10 साल व्रत रखते रहे, वक्त लग जाता है। अगर छठे भाव के स्वामी कौन है? भोले बाबा। मजा ही आ गया। उन्होंने आपको साल, 1.5 साल में, 2 साल में माफ कर देना। और अगर राम जी और हनुमान जी हैं फिर तो बहुत ही मजा आ गया, क्योंकि वो आपको 6 महीने में ही माफ कर देंगे। हनुमान जी तो वैसे ही रेडी है। आप हनुमान जी के सामने 5-10 बार बोल दो राम 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 राम, वो बोलेंगे जी मालिक आप राम राम बोल रहे हो ना, बताओ आपके लिए क्या करना है।
समझ रहे हो आप मेरी बात? जी कुंडली देखनी आसान हो जाएगी थोड़ी। हम्म, कुंडली की एनर्जी को समझना आसान हो जाएगा। Right. yes, समझ रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि हेल्प तो इन 3 एनर्जीज नहीं करनी है, Yes. और तो कोई कर नहीं सकता। बाकी तो सारी एवं राम कहानी है, ये कर लो वो कर लो, इतना कर लो उतना कर लो, एंड में तो जाही विधि राखे राम ताही विधि रहेंगे, होती है, है ना? सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। लेकिन समझना जरूरी है थोड़ा सा, है ना? विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज व्हाट, व्हाई आपकी लाइफ में क्यों इतनी डिफिकल्टी है। कौन सा ऐसा श्राप था जो डायरेक्टली विष्णु जी से आया? कौन सा ऐसा श्राप था जो डायरेक्टली शिवा से आया? क्या आपने इतना कर्म किया होगा जो आप श्रापित हो गए उस एरिया में, और उसका सॉल्यूशन भी आपके सामने ही है। इसीलिए केंद्र त्रिकोणा हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अच्छा, लोग कहते हैं काम त्रिकोण के भाव भी होते हैं, सेक्सुअल लाइफ, एक्टिविटी, मैरिज। अरे बिल्कुल होते हैं, वो भी हमें मदर नेचर से ही तो देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं काम त्रिकोण के भाव? एनीवन? 3, 7, 3 6 हाँ, the 3, 7, 11. 3 7 11 3 7 11 yeah ओके, 3 7 11 लिख देते हैं। तो आपने बोला 3 7 11, ये काम त्रिकोण है। काम त्रिकोण मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी। आप मुझे बताओ, अगर आपको कोई पसंद है तो आप उसको कैसे बताओगे कि आप हमें पसंद हो? कम्युनिकेशन से, या तो वो वर्बल कम्युनिकेशन होगी या बॉडी कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज होगी। कम्युनिकेशन का भाव कौन सा है? थर्ड थर्ड हाउस। हाउस। थर्ड हाउस। ठीक है, यहाँ पे मैरिज हुई 7th हाउस, राइट, 7वां घर। और 11th हाउस इज होप्स, विशेस एंड डिजायर्स। 1 2 3 4 5। थर्ड हाउस का फ्यूचर कहाँ पे है? 7th हाउस में। 1 2 3 4 5। 7th हाउस का फ्यूचर कहाँ पे है? 11th हाउस में। 1 2 3 4 और 5। किसी से भी 5वां घर आगे फ्यूचर, 9वां घर उसका भाग्य। ठीक है, अभी रुको, ध्यान से देखो। आपको लगता है कि ये 2 ओवरीज हैं, और आपको लगता है कि ये यूट्रस की तरह फॉर्मेशन हो रही है? ये Yes. आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जी इसीलिए 3 7 11 को कामा हाउसेस बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट्स 2 ovaries and a yoni, and the yoni means uterus. This is called uterus. That is why these are 3 7 and 11 houses. They are called kama houses. Am I making some sense to you? yes sir You can take this as, for a male organ, as 2 testes with the organ. Again, 3 7 11, be it a male, be it a female. सब कुछ कुदरत से निकला हुआ लॉजिक है, केवल आपको समझना है सब कुछ। अच्छा, आप मुझे एक और बात बताओ। मुझे तो मोक्ष चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक बेवकूफ इंसान हूं, मुझे मोक्ष का कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे मोक्ष चाहिए। सुनी सुनाई बात है ना? आप हमारी कक्षा में पहले पूछते थे, अब आपको क्या चाहिए? बोलो मोक्ष। तो पता है मोक्ष क्या होता है? बोलो हमारे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। वो तो वैसे भी नहीं लेना पड़ता। अगर आत्मा विष्णु जी को बोल दे कि मुझे जन्म नहीं लेना है, तो विष्णु जी मौके पे माफ कर देते हैं। लेकिन आत्मा मृत्यु के बाद इतनी दुखी हुई होती है, इतनी तड़फी हुई होती है, कि उसका दिल करता है जल्दी वापस धरती पे जाने को, अपनों से मिलने के लिए।
क्योंकि जो भी दिमाग में आपके चल रहा है वो आपके दिमाग में चल रहा है, आत्मा के पास दिमाग नहीं होता ना। ये बहुत डीप बात है, कभी खुले वक्त में आपको समझाऊंगा। जो लोग आत्मा के साथ जुड़े हुए होते हैं उनको मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि उनकी आत्मा जानती है उसको क्या चाहिए। 99% लोगों की आत्मा को पता ही नहीं उनको क्या चाहिए, वो किसके पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, मोक्ष के घर कौन कौन से होते हैं? सर 12th 12th house. 4, 8 and 12. 4 at 12. Why? 8 मुझे किसी ने बोला 12th हाउस, अभी हमने बात की है ना। 3 घर बना रखे हैं हमने हर एक चीज के, त्रिकोण, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिकोणों में बात हो रही है। 5 हाउसेस आगे गिनो 12 से। The fourth house. ओहो, Fourth. वेरी गुड। And the 12 and और आगे Fourth, गिनो। 8 and 12. Sir, 4th, 8th house. 12. लॉजिक समझ रहे हो कैसे बन रहा है? Yes, sir. हाँ, अब ना इनको मैं सर्कल करता हूँ, ये लो। एक्सक्यूज मी, और इसको ऐसे जोड़ देता हूँ। ये क्या बना? Trigon. कौन सा त्रिकोण? क्या है ये? Flag. फ्लैग क्या होता है? कौन सा ग्रह है फ्लैग? सर फतेह करना, लाइक फ्लैग कौन सा ग्रह है? Ketu. Ketu. और केतु किसका कारक है? Moksha. Detachment. Moksha. अरे ये तो बहुत आसान था। दिस इज वेरी सिंपल। Oh my God, oh my God, you people are very intelligent. Superb, isn't? तो अगर आपको मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले 4th हाउस देखना है। अब वो नवनीत सर 4th हाउस क्या होता है? 4th हाउस होता है आपका दिल, जिसका आता है बहुत बड़ा बिल, है ना। ये दिल ही तो है जो बड़े बड़े बिल आपको पैदा करता है, दिल का बहुत बड़ा बिल। हाँ, 4th हाउस इज योर हार्ट। सो अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो सबसे अच्छा क्या होना चाहिए? 4th house. सबसे साफ Fourth house. सबसे साफ Pure सुथरा, heart. सबसे साफ सुथरा क्या होना चाहिए? Pure. Fourth and Dil. The first condition for a moksha is a pure heart. Yes. अगर किसी का दिल नहीं ना अच्छा, उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। और अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो तो आपको सबसे अच्छे पहले क्या करना है? अपना क्लियर हार्ट को साफ करना है। मन में छल, कपट, द्वेष ये नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम मोक्ष के नजदीक है, राइट। और जब आपका दिल अच्छा हो जाएगा तो आपको अच्छे अच्छे सीक्रेट्स पता लगेंगे, कुदरत के सीक्रेट्स। और जब आपको सीक्रेट ही पता लग गए, सारे ज्योतिष आ गया, फिर तो मेडिटेशन हो ही जाएगी और आप मोक्ष को प्राप्त कर ही लेंगे। 12th house. Am I making some sense to you? Yes, no, maybe. yes, तो sir. अभी हमने एक चीज ऐसा वाला त्रिकोण देखा, ऐसा वाला, एक हमने देखा ऐसा वाला, है ना। एक हमने देखा ऐसा वाला। ये क्या है? 159 क्या है? ये 159159। जरा इसको भी देख लेते हैं ना, ये सारा अभी हम करते हैं यार। ये मतलब विष्णु जी ने ये 159, राजा राम जी ने ये 159 क्यों लिया?
उन्होंने 4 8 12 क्यों नहीं लिया? 1 5 and 9, which is Brahma, Vishnu and Shiva. महेश, Yes. Yes, sir. ये वाला ट्रायंगल Yes. क्यों? Why? क्योंकि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के ऑपोजिट है। So if you go exactly opposite to Kam, Krodh, Lobh, Moh, you will find Brahma, Vishnu and Mahesh. Exactly opposite triangle 1 5 9. 3 7 11 काम के बिल्कुल अगेंस्ट क्या है? भक्ति। When you get, control over your communication, your sexual life and your desires, you will find Brahma, Vishnu and Mahesh 1 5 9. Yes, no, maybe. Yes. Yes. Yes, sir. Aren't these simple logics? Yes, sir. Yes. So you are making it simple. Acha. Okay, good. Nice. So now I can easily go to my presentation and show you a little bit of my presentation. These are Kendra houses. These are Trikona houses. Oh, these are Kama houses. Now you know everything. Super people know. These are Moksha houses. You are knowing everything. But beside them, we also have some more houses. Oh, they are called Upachya houses. 3, 6, 10 and 11. The meaning of the Upachya houses is that if you have any planets in these houses and they are badly placed. When I say badly placed, means they are Shrapit. So the moment you turn 36 in your life, 36 we consider the midway because one Yogini Dasha finishes in 36. One cycle of Yogini finishes in 36. तो हम उसको midway, halfway लेते हैं life का. और halfway जब आप क्रॉस कर जाते हो तो आपके इन घरों में जो भी ग्रह पड़े होंगे वो आपको क्षमा कर देंगे। मान लो आपका शनि 3rd हाउस में है या 6th हाउस में है या 10th हाउस में है या 11th हाउस में है और आपकी 36वें साल के बाद दशा आ गई और वो खराब बैठा था, वो दशा खराब नहीं जाएगी क्योंकि ये उपच्या हाउसेस 36वें साल की आयु के बाद अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य हैं। याद रखना, मतलब कोई खराब ग्रह बैठा है 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 10th हाउस में और 11th हाउस में और उसकी दशा चल पड़ी और एज 36 से प्लस है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। वो आपको खराब रिजल्ट नहीं देंगे जितना आप सोच रहे हो। ओके, दे आर कॉल्ड उपच्या हाउसेस। दीज हाउसेस ग्रो विद द एज। कैसे? वाई? ऐसे नहीं, सिर्फ बताने से नहीं चलेगा, लॉजिक भी चाहिए। बता दें फिर आपको लॉजिक? Yes, sir. Yes, sir. कोई मेरे साथ ट्राई करेगा? क्या लॉजिक हो सकता है? Yes, sir. बताओ। बताओ बताओ बताओ, क्या सर लॉजिक हो सकता है? हाउस स्ट्रगल का होता है। 3rd हाउस, यस 6th सर। हाउस सर डेप्थ का, 10 बीमारी का, और 11। सोसाइटी। यस सर। ये कैसे ग्रो कर जाते हैं? इनमें ग्रह जो पड़े होते हैं वो 36वें साल के बाद कैसे ग्रो करते हैं? क्या उनको क्या होता है ऐसा कि वो इतने बुरे रिजल्ट नहीं देते? So can I try? So 36, if अंशुला बोल रहे added, हो? हाँ जी सर, अंशुला हाँ। बोल रही हूँ। So it is equal to 9 and this number represents dual nature of Shiva. So
if they are like malefic, they can change their nature after. That is one we can think over it, which is a logical thinking. But I'm talking of houses. Why third house, planet present in the third house, sixth house, 10th house, and 11th house start performing better after the mid age? I want to say something about Yes. 10 and 11. It is the Saturn ruling planet, and Saturn matures at the age of 36. That is another logic. Beautiful. What else? Mercury 3 and 6. I don't know about that. Hmm. सर बुध भी ना ड्यूअल होता है नेचर में, तो सर पहले आई थिंक बोलो बोलो, गलत बोलो, ठीक बोलो, ट्राई करो. सर जैसे बुद्धि का विकास होता है धीरे धीरे, तो 3-6 मरकरी के नंबर्स हैं, तो बुध अपने ड्यूअल नेचर होने की वजह से उसको से ग्रोथ मिलती है, तो ही कैन फाइंड कि व्हाट इज गुड और बैड, लाइक Good. What else? Sir, I think 3 and 6 both are having the planets of Budh, and 10 and 11 are having the planets of Shani. Hmm. And I think according to age or as we grow, तो एक बाद हम लोगों की समझ भी बढ़ती है and we become mature. Hmm. Good. Nice. See, you know what? आपकी बचपन की कम्युनिकेशन और आपकी कम्युनिकेशन में बहुत फर्क है ना. जब आप 24-25 साल के थे तो आप अपने आप को बहुत तीसमा खास समझते थे, लेकिन आज जब आप 30-35 साल के हो गए तो आप समझते हो 24-25 साल में तो आप बेवकूफ थे. जैसे आप ग्रो करते हो ना, सबसे पहले थर्ड हाउस ग्रो करता है. आपको बोलने की ये जो आपकी जुबान है ना, जो कैंची की तरह चलती है, धीरे 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 कम हो जाती है. आप देखना 36वें साल के बाद ना एकदम से चेंज आता है, कम बोलने लगते हो आप हैवी बोलने लगते हो, अच्छा बोलने लगते हो, राइट. और आपकी रोग शोक कर्जा ऋण बीमारी शत्रु इन सब से साथ लड़ने की भी अकल आ जाती है 6th हाउस में. आपको पता लगने लग जाता है ये आपका दुश्मन है. पहले आपका जो बेस्ट फ्रेंड होता है, जो आपको बोला भाई पी तू, भाई तू सिगरेट लगा ले, पी ले, वो कह रहा है यार तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, यार तू मेरी जान है. आपको पता लगने लग जाता है एट द एज ऑफ 36 that this was the one who destroyed my life. आपको अपने काम का पता लगने लग जाता है, वर्क का, कि आपका वर्क है क्या. पहले तो आपको अपने जिंदगी के पहले 10 साल तो आपको अपना वर्क समझ नहीं आता. 10 साल के बाद रियलाइज होता है यार मेरा ये वर्क था ही नहीं, मुझे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना ही नहीं था, मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना था. देखो ना, अभी मैं 41-42 ईयर्स का हूँ. अगर मैं आपको 22 ईयर्स पहले मिला होता तो हम ज्योतिष को कहाँ ले जाते. यस सर. वो आपको रियलाइज 36 के आसपास जाके होता है. और आपको एक्चुअल में पता लग जाता है होप्स विशेस एंड डिजायर्स क्या है. क्यों? क्योंकि आपको पता है आपकी स्ट्रगल का भाग्य कहाँ पर है. भाग्य कौन सा घर होता है किसी भी घर से? 9 आप थर्ड से जरा 9 हाउस गिनो जरा. 11th हाउस. सो आपकी जो गेन्स है ना लाइफ के अंदर, वो जो है वो डिसाइड करते हैं कि आपके जीवन में कितनी स्ट्रगल होगी. थर्ड हाउस, क्योंकि यहां से 11th हाउस से अगर आप 5 घर गिनो तो क्या है? third house. तो मतलब 3 और 11 का आपस में कौन सा रिलेशन है? 9 पंचम, 9:5. 9:5. थर्ड हाउस से 11th हाउस 9th प्लेसेस दूर है, और 9th हाउस से थर्ड हाउस 5 प्लेसेस दूर है. आपकी डिजायर्स, होप्स, विशेस आपको स्ट्रगल में डालती हैं. बड़ा घर, बड़ा पैसा ले ले, उसके लिए आप ज्यादा स्ट्रगल और स्ट्रगल और स्ट्रगल. और अगर बड़ा पैसा है, सब कुछ है, डिजायर्स आपकी फुलफिल हो रही हैं, तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल ही नहीं होगी. वो भाग्य पे डिपेंड करता है टोटली. इसीलिए थर्ड हाउस मृत्यु का घर भी है. इट इज हाउस ऑफ डेथ ऑल्सो. व्हाई?
Why it is house of death? Eight from 8th from 8th तो है ही है, लेकिन 7th हाउस किस चीज का है? मैरिज। मैरिज। मैरिज का जो भाग्य है वो पता है क्या है? डेथ है। मैरिज का फ्यूचर जो है वो डेथ है। कैसे? मैरिज हुई, बच्चे हुए, सारी जिंदगी आपका मन उस पे लगता है, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी मैरिज, हाय मेरा घर, हाय मेरा पैसा, हाय इनका फ्यूचर, इनकी पढ़ाई, बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, डॉक्टर, सर्वाइकल, यू नो, ऑल 7th हाउस। छड़े बंडे को कोई टेंशन होती है? रह कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो विवाह है ना, आपके जो बच्चे हैं, वो आपको मृत्यु की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह सब बढ़ा रहे। शादी होती है सबसे पहले, इट इज लाइसेंस फॉर सेक्स। आपके घर वाले, आपके रियल ब्रदर सिस्टर आपका रूम सजाएंगे, फूल लगाएंगे उसमें, आपके साथ, आपको मजाक करेंगे आपके साथ। यू नो, मैरिज में जो पहली चीज एक्टिवेट होती है वो होती काम। उसके 2 महीने बाद आपको क्रोध आना शुरू हो जाता है उसी लाइफ पार्टनर पे। उसकी कोई बात होती तो आपको आग लग जाती है, क्रोध। इसके बीच में बच्चे आ जाते हैं, मोह पड़ जाता है, बच्चों के साथ मोह हो गया। अब उस मोह की वजह से आपकी लाइफ में लालच आ जाता है आपको कि ये भी ले ले, वो भी, तो लोभ। तो वो जो 4 चीजें हमारे शास्त्र बोलते हैं उनसे दूर रहो, वो चारों चीजों का लाइसेंस है शादी। काम, क्रोध, लोभ और मोह। इसीलिए ये मृत्यु की ओर लेके जाती है। इसीलिए 7th हाउस और 2nd हाउस मार्का हाउसेस हैं। याद रखना, आज के बाद भूलना मत। मारक घर कौन कौन से हैं? 2nd and 7th. 2nd and 7th। 2nd क्यों? क्योंकि 2nd हाउस जो है ना, आपके टेस्ट बर्ड्स का हाउस है। विष्णु जी कहते हैं एक बंदा अपने टेस्ट की वजह से मरेगा और एक शादी की वजह से, बस इन दोनों चीजों से बच लो तो जल्दी मरोगे नहीं। 2nd हाउस आपके टेस्ट बर्ड्स है ना, लाओ पकौड़े, बर्गर, पैटीज, पास्ता, ठंडी ठंडी बियर, कोक में बर्फ डाल डाल के पियो, है ना। सुबह उठ के भटूरे खाओ 2-3, दोपहर को पकौड़े खाओ, शाम को मिठाई खा जाओ आधा किलो, और एक्सरसाइज करो मत, सोते रहो, चलो भगवान के पास, है ना। 2nd हाउस आपका जो टेस्ट है ना, जो आपकी जीभ लपलपाती है शाम को कुछ खाने के लिए, कुछ अच्छा सा, जोमेटो की तरफ जाके देखने लग जाते हो कौन कौन से रेस्टोरेंट ओपन है, कौन कौन से नजदीक है। बर्गर लिया जाए कि चलो एक 30 रुपए वाला बर्गर ही ले लेते हैं स्विगी से, या एक वड़ा पाव ही ले लेते हैं। वो पता है कौन सा है? वो 2nd हाउस है आपका। कौन सा हाउस है? 2nd हाउस। और अगर 2nd हाउस में राहु बैठा हो तो आप क्या बोलोगे? प्रिडिक्ट करते हुए क्या बोलोगे? ऐसा बंदा बहुत ज्यादा फास्ट फूड के लिए क्रेजी होगा। 2nd हाउस राहु। और अगर 2nd हाउस में जुपिटर बैठा होगा तो क्या बोलोगे? ऐसा बंदा किसके लिए क्रेजी होगा? कौन सी चीज खाने के लिए? सात्विक भोजन। भोजन। नहीं, आप कलयुग में घूम रहे हो, सतयुग में थोड़ा घूम रहे हो। 2nd हाउस जुपिटर मीन्स मीठा। ऐसे बंदे को 1 किलो लड्डू खिला दो, वो खा जाएगा। जलेबी खिला दो, उसकी बस स्वीट्स की शॉप पे जाके तो एकदम जीभ लपलपाती रहेगी, हाय एक गुलाब जामुन मिल जाए, थोड़ा सा पतीसा, थोड़ा सा गुजिया, थोड़ी चमचम, रसगुल्ले, जलेबी, अमृति, पिन्नी, वाओ कितनी सारी चीजें होती है, बर्फी, काजू कतली। हाँ, सर आप में गणपति जी क्रेविंग हो गया। ये देख लो, सबको क्रेविंग शुरू हो गई है ना। 2nd हाउस जुपिटर, है ना। 2nd हाउस शुक्र, वो क्या होगा? वो ना लोग स्मेल ही करते रहेंगे, कोई भी खाना है ना उसे आके स्मेल करेंगे, अच्छा बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, वो स्मेल से ही पेट भर लेंगे अपना। 2nd हाउस केतु, कुछ भी खिला दो,
जो मर्जी दे दो, सब चलेगा, कोई टेस्ट नहीं, सब राम भरोसे है, जो मिला अच्छा दिया। पत्नी हमारी जो है भगवान है, उसने जहर भी दे दिया, वो भी खा लेंगे। सेकंड हाउस केतु, आधी कच्ची पक्की रोटी सब ओके है, सब ठीक है, तेरे हाथों से बनी हुई है ना, मैं खा लूंगा यार, यू नो दैट टाइप्स। केतु इन द सेकंड हाउस, बुध इन द सेकंड हाउस, पीपल विल ईट इन स्मॉल स्मॉल बाइट्स, बिट्स, जैसे बच्चे खाते हैं। हाँ, शनि, सॉरी प्लीज, सर सूर्य हो तो सूर्य अंदर सेकंड हाउस हो तो इंसान हमेशा फिटनेस जैसी चीजें, अच्छी चीजें जैसे सत्तू बाजरा, उनको ध्यान रहेगा कि हमें अच्छा घी भी खाना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो वो हमेशा। अच्छा, सेकंड हाउस का सूर्य, मेडिसिन भी लोग बहुत ध्यान से खाते हैं, मतलब मेडिसिन का बड़ा ध्यान रखेंगे अपना। सर एग्री, करेक्ट। मेडिसिन का बहुत ध्यान हो, डॉक्टर ने लिख दिया ना 3 बार इतने बजे, तो अलार्म लगा के रखेंगे, इतने बजे खानी है भाई साहब, और आपने मिस कैसे की। तो ये सब खाने पीने की चीजें सेकंड हाउस से पता लगती हैं। आपका जो पॉटी एरिया है, रेक्टम एरिया, वो 8th हाउस है। अगर किसी को भी कॉन्स्टिपेशन है, पेट खराब है, उसका 8th हाउस खराब होगा। किसी के स्टमक में प्रॉब्लम है, उसका 6th हाउस 5th हाउस खराब होगा। 5वें और 6ठे भाव में श्राप होगा, आप देख लेना, उसका पेट खराब रहेगा। राहु बैठ जाए, सूर्य राहु आ जाए, चंद्र केतु आ जाए, 6ठे भाव में शनि राहु आ जाए, 5वें भाव में शनि राहु आ जाए, डाइजेशन प्रॉब्लम। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। मुझे 1.25 घंटा हो गया, बोलते हैं मेरा गला दुख रहा है, अभी मैं ठीक नहीं हूँ पूरा, तो बल्कि हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे सारे हाउसेस को। और यहाँ तक किसी के कोई सवाल है तो आप पूछिए। सर अगर सेकंड हाउस में शनि हो तो टेस्ट क्या बिटर अच्छा लगता है? सेकंड हाउस में शनि होना, क्रिटिकल माइंड होता है, ये खाना है वो नहीं खाना, ये कैसे बनाया है वो कैसे बनाया है, क्वेश्चन चूज करे जाना, चूजी, वो जज, जैसे जज बैठा होता है ना जजमेंट। घर पे, जजमेंट, भैया ये कैसे बना, ये कैसे बना दिया, अरे ये अच्छा नहीं है, उसका लाओ, इसका लाओ, वो दैट इज सैटर्न इन द सेकंड हाउस। और उनकी प्लेट हमेशा भरी हुई होगी, सेकंड हाउस सैटर्न, भर के प्लेट खाएंगे वो, क्योंकि लेबर है ना, लेबर क्लास की प्लेट देखी है आपने कभी, फिल्ड। भरी फिल्ड, उछल उछल के बाहर गिर रहा होता है, मतलब लड्डू बस फिसलाई की मुंह में डाल दिया फटाफट, दैट टाइप्स। यस सर। हाँ जी सीमा जी। सर आपने जैसे वो माला के लिए बोला था ना, अगर और रेगुलर हम बैठ के करते हैं तो पैर सुन्न हो जाते हैं, तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं या हाँ उसी हाँ, डायरेक्शन? डायरेक्शन बिल्कुल चेंज कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, खड़े होके कर सकते हो, चेयर पे बैठ के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे रेगुलर करनी है, मान लो 5 करनी है तो पैर एकदम सुन्न जैसे हो जाते हैं। बिल्कुल, पैर बदल सकते हो, आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी जी, यही हाँ श्रेया। सर 8th हाउस आपने बताया कि सीक्रेट्स का है, हिडन सीक्रेट्स का ज्ञान, तो उसमें साधना भी आ जाती है? साधना में बैठना अष्टम भाव है, और साधना में ध्यान लगना द्वादश भाव है, 8 and 12। ये आप मेरे साथ आगे बढ़ोगे ना तो धीरे धीरे बहुत सी चीजें आपको समझ आएंगी। अंशुला, यू हैव अ क्वेश्चन? No, sir. Okay, good. So Meenakshi, Anshula, Jyoti, so not Jyoti, yeah, Jyoti, आपको कैसा लगा आज आरती? I mean, you understood few concepts? Yes, Yes, sir. Yes, sir. मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो बोलो। सर लाइक 4 सेशन मैंने ऑनलाइन अटेंड किया आपसे। सर लिटरली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे वाकई में ना, अगर गुरु के रूप में भगवान मिल सकते हैं तो लिटरली आप मिले हो। sir, I would say कि so just by linking with this, जी जी so जी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे something has broken and something has started. पता नहीं सर, मतलब थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ ही रहेगा, डोंट यू वरी। हमेशा जो मेरी दुआएं हैं, मेरे गुरुओं ने मेरे सिर पे हाथ रखा, और उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज के लिए ब्लेस किया था, सिर्फ एक चीज के लिए, वो मैं आपको आज सीक्रेट बताता हूँ। वो ये चीज थी कि आप जिसको पढ़ाओगे, ठीक है, उसको समझ में आएगा, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो।
उसको समझ में आएगा। उन्होंने मुझे सिर पे हाथ रख के बात बोली थी, तो वो चीज है, और वही चीज आप लोग फील करते हो। ये मेरा नहीं है, ये मेरे गुरुओं का ही मेरे ऊपर आशीर्वाद है। ठीक है, तो अब 3 बार ओम बोलेंगे।